clear? My voice is audible to all. Yes. I am just giving you the brief introductory points of the statistics subject which are relevant for SPSS software. Most of you are not from the statistics background, therefore the basic concepts of statistics must be clear for all of you, so that you can very easily handle the SPSS software. My just introduction was given by Dr. Romi Yadav. I am introducing myself. I am basically data scientist. I did my PhD from this department in 1986 and then joined Humayun University in the same year, medical, and then came back in 2006 after serving here as a 20 years, being head, leader head, that was that time the post of leader was there as associate professor and joined here in 2006. And thereafter, I will be working on data analysis for various softwares. My also known as R Bayesian all over the globe. R is not for Rajiv. I will at the end tell you what to mean by this R. The most efficient way to contact me, here is we are running a website since 2016, data analytics DACG.in. If you are having any type of problem of data analysis, you may go to the contact us of this website and you will put your problem that I am unable to solve the solution or the problem, which tool is to be used. That is the most important aspect. And within 10 days, you will get a solution free of cost. And you will be surprised to know that this group has already solved 40,000, more than 40,000 problems free of cost without taking any money from all over the globe. So therefore, the most efficient way to contact the EU go is this is my 3039th lecture as I have delivered on various topics, communication, statistics, different software, STAT, R, Python, big data analysis, Monte Carlo models, statistical computing, machine learning, simulation, Bayesian predictive modeling, and data consultant at present. I am data consultant in UP Police as well as the Indian Railways. I will give you the various examples where this is. For making a program interesting, always remember, I am sharing these few lines. Are all you are comfortable in English? Yes. Or it should be bilingual. यदि किसी को नहीं समझ में आए. Whenever I deliver lecture, I always have to share. I always share these 4 lines. Being a statistician, just is that if you are going to present your project or PhD biology examination or in some project for submitting in UGC or any other funding agency, then if your facts are dull, जो कुछ हम प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे फैक्ट्स यदि डल हैं तो लोगों को बड़ा मजा आने लगता है, लोग इंटरेस्ट क्रिएट करने लगते हैं क्योंकि स्पीकर को गिराने किया वो. इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, हमारे और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी भी पॉइंट को लेकर, देन दैट विल स्टिमुलेट इंटरेस्ट. इफ माय परफॉर्मेंस इज पुअर, then that will also kill interest. Complexity leads to confusion, not interest. Monotony or listener, we know that we can't have. First of all,
I will just want to say that क्या statistics को आप लोग subject मानते हैं? Whether you think that statistics and mathematics both are subjects. जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, AIH है, लिंग्विस्टिक है, के तमाम सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा लाइक दिस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फंडामेंटल साइंसेस में है. Whether you think that these two are the subjects, not at all. Basically, whole science in the universe has categorized into two categories. One is fundamental science, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग लाइक दिस, बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. एंड सोशल साइंसेज इज अनदर कैटेगरी, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, AIH, डिफरेंट ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स. Whenever social scientists gather data through survey or fundamental scientists observe some laboratory observation, then he always needs an analysis. So in my opinion, our subjects, mathematics and statistics, are basically tool subjects. जैसे for example, Lucknow to Kanpur, a person travels by a car at the speed of 40 km/h and return back at the speed of 60 km/h. What will be the average speed of the train? एक आदमी लखनऊ से कानपुर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, लौटता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से. What will be the average speed of the train? Any one of you? आपने क्या किया? 40 प्लस 50 को जोड़कर 4 से डिवाइड कर दिया. आंसर इज रॉन्ग. आंसर कम्स आउट टू बी 48.2 किलोमीटर पर सेकेंड. You have to compute the total distance and take time taken by the total distance, then you have to calculate. And statistically or mathematically, you will have to use the formula of harmonic. So, यदि आप, if you are performing analysis of your data, if such type of figures are there, then you will not be able to use the proper tool. अब आपकी ये बात मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है? मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट टूल्स बनाते हैं और स्टैटिस्टिक्स किस सिचुएशन पर कौन सा टूल कहां पर यूज किया जाना है वो बताते हैं. दिस इज द बेसिक. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी या प्रायिकता कुछ पढ़ा होगा या जानते होंगे. If you toss a coin, either head will be the uppermost or tail will be the uppermost. Okay, there are only two possible outcomes, and you say that the probability of getting head is equal to 50% and probability of getting tail is equal to 50%. Is it right? This is the formula what the mathematician has developed. Now I am saying that we are sitting under this minute. Either this will fall down or it will not fall down. जैसे कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल था, उसी तरीके से either this will fall down or this will not fall down. So will you say the probability of falling down of this ceiling is 50%? Same formula you can apply here as in the coin tossing experiment. If you apply that formula, then that will say there is a 50% chances of falling down of this ceiling. क्या आप ऐसी छत के नीचे बैठना पसंद करोगे जिसमें गिरने की प्रोबेबिलिटी 50% है? नॉट एट ऑल. अभी क्या नाम तुम्हारा भूल गए, अंजना बैठी हुई है यहाँ पर.
एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अभी ये सुबेरे से मेहनत कर रही थी हमारी रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट की। खाया पिया इसने कुछ नहीं, सारी कैलोरी बंद कर दी, कल भी दिन भर ये रही और फेंट होके अचानक गिर गई। तो हमारा लेक्चर तो गया, वर्कशॉप गई बाढ़ में। सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, इसको उठा के नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है उस पे इसकी सहेली जो क्या कहते हैं पूजा गुप्ता बैठी हुई है उसके साथ डाल के ले जाए। अब मैं आगे बैठा हूं, एक ड्राइवर बैठा हूं और ये बेहोश पड़ी हुई है। इसको रास्ते में थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। अंजना ने पूजा से पूछा कि सर तो 40 साल से प्रोबेबिलिटी के मास्टर हैं, जरा इनसे पूछो कि हमें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हम मरेंगे या जिएंगे। अप्लाई दैट क्वांटिटेटिव फॉर्मूला। तो पूजा ने कहा कि सर कह रहे हैं कि 50% चांसेस है तुम मर जाओगी। मैं आपको बता रहा हूँ कार का शीशा तोड़ के। दिस इज द रियलिटी। We cannot apply that formula here. Therefore, mathematicians have developed the different tools for analyzing the observations or the data which we collect through surveys in social sciences as well as the observations in different laboratories of our physical laboratories, or medical colleges, or engineering, etc. The purpose of statistics is to develop and apply the methodology for extracting useful knowledge from both experiments and data. My opinion is totally different. As I discussed in the previous three examples, statistics is neither really a science nor a branch of mathematics. It is perhaps best considered as a data science. Therefore, my submission to all participants is that you apply statistics in the okay. I'm just telling. शेक्सपियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसने डिफरेंट प्लेस लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड 1602 में हैमलेट प्ले यदि आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड का वहां पर यूज। एंड 16th सेंचुरी में इनॉग्रल सेशन में विवेक जी बता रहे थे या शशि भूषण सब ने बताया 16th to 17th सेंचुरी में स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट रोमन एम्पायर्स के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल किया गया। रोमन एम्पायर्स वाज द फर्स्ट एम्परर who developed the concept of statistics for collecting data for their agriculture land, their wealth, their number of persons, like these concepts. And later on, धीरे धीरे 17th सेंचुरी में स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट। एंड यू विल बी सरप्राइज, आई विल शो यू द पर्सन जिन्होंने इसको किया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेल्जियम में या स्पेन में डेवलप किया गया। स्पेन में क्या होता था, बिजनेसमैन एक रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सामान लाद के ट्रेड करने के लिए जाते थे। और ट्रेड करने जब जाते थे तो जो बिजनेसमैन होता था वो बोट, कोई ब्रिज वगैरह तो उस समय बना नहीं हुआ था, बोट से जाते थे। बोट वाला जो बोटमैन था वो सब लोग वहां पर एक किनारे गैदर हो जाते थे कि शाम को बिजनेसमैन जब कमा के आएगा तब फिर उसको लेके चलेंगे। ड्यूरिंग होल डे वो जो नाविक हुआ करते थे वो एक प्रकार का गेम खेलते थे, राउलेट गेम। अभी आई विल शो यू दैट व्हाट टाइप ऑफ गेम इज दैट। राउलेट गेम की मदद से वो लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाते थे। जैसे आपने बचपन में स्नेक एंड लैडर खेला है या लूडो खेला है या क्रेट का एक गेम होता था, दो डाइस से खेला जाता, हमने भी बचपन में खेला, या प्लेइंग कार्ड्स। आपने एरिस्टोटल एंड प्लेटो का नाम सुना है? कौन थे? ग्रीस के फिलोसफर्स थे। सबसे पहले इनका मानना ये था, ये बड़े जिद्दी टाइप के फिलोसफर थे। आज भी
पॉलिटिकल साइंस और उसमें आपको जितना करना है वो कल लीजिए। एक बार आई डोंट वांट टू एलाबोरेट पर 17th सेंचुरी के पहले एंशियंट ग्रीस पीरियड में फिलोसफर्स थे, उस समय क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की जाती है, नॉट क्वांटिटेटिव जो आज हम लोग करते हैं। एरिस्टोटल एंड प्लेटो का ये मानना था इस जगत में जो कुछ भी होता है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, ईश्वर के हाथ पे है या अल्लाह के हाथ पर। हम आपसे आज इंटरेक्ट होना था, आप लोग कभी पार्टिसिपेशन यहाँ करते या ना करते, ये एक हमारा गॉड के हाथ पे था। हो सकता हो आप में से कई लोग रजिस्टर कराए हो फिजिकली या ऑफलाइन मोड पर, यहाँ पर नहीं आ पाए, या हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो उसने हमारी क्लास प्रोबेबिलिटी की नहीं पढ़ी। दिस वाज द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो दैट टाइम एंड दे डेवलप द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी आप लोगों से यदि हम प्रोबेबिलिटी की पूछे व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, देन यू से दैट द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट इज द प्रोबेबिलिटी। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ प्लेटो वाज टू फाइंड द सर्टेनिटी इन ए सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। हम लोग भी तो हिंदू मैथोलॉजी में यही कहते हैं कि पूरा संसार मिथ्या है। एरिस्टोटल और प्लेटो का यही मानना था कि इस जगत में जो कुछ भी होता है वो जिसको देखा नहीं है किसी ने, गॉड या ईश्वर या अल्लाह जो भी आप कहना चाहते हैं, उनके द्वारा निर्धारित है। हो सकता हो अभी मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर देने के बाद मैं अपने घर जाऊँ, कार स्टार्ट करूँ, आर्ट कॉलेज में मेरा एक्सीडेंट हो जाए और आई विल बी नो मोर। इट इज पॉसिबल। अभी आपने साल भर पहले पढ़ा हुआ एक ब्रिगेडियर आंध्रा पे जाके पूरे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, क्या कभी उसने सोचा था? नॉट एट। इस डेफिनेशन को एक और प्रोफेसर आए ह्यूम, उन्होंने चेंज कर दिया। ह्यूम ने ये कॉन्सेप्ट दिया, एक एग्जाम्पल उसने दिया था, राउलेट का, वो इस साइड में नहीं आ पा रहा है, देर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है अमीनाबाद, वो बाहर से आए हैं तो घूमने जाइएगा। इस समय भी दिन के 2 बजे 10,000 की गैदरिंग वहां पर होती है एट वन मोमेंट ऑफ टाइम। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अमीनाबाद की 10,000 की भीड़ में गोली चलाकर शूट कर दिया और बी वहीं पर मर गया। लोगों का यह कहना था बी की मौत ऊपर वाले ने या गॉड ने दिन के 2 बजे अमीनाबाद की भीड़ में 10,000 पब्लिक के सामने लिखी थी, इसलिए भी मर गया। एक का क्या हुआ, पब्लिक ने पुलिस पकड़ लिया और पुलिस को हैंड ओवर के भाग तो सकता नहीं था, कोर्ट और वो जेल में डाल दिया गया। जूरीज का भी वो चला ट्रायल 6 महीने 8 महीने तक। आफ्टर 10 month जूरी डिसाइडेड कि ए मस्ट बी हैंग टिल डेथ, ए को फांसी की सजा। तब ह्यूम ने एरिस्टोटल एंड प्लूटो से ये पूछा कि बी की मौत अमीनाबाद में 10,000 भीड़ में के सामने 2 बजे पिस्टल लगकर लिखी हुई थी, ये तो ऊपर वाले ने तय किया था आपकी थ्योरी के हिसाब से, तो इसलिए मर गया था। लेकिन ए को मौत कौन दे रहा है? वो जज। तो क्या जज गॉड हो गया? जज इज नॉट गॉड। क्या हुआ, जज के सामने जो एविडेंसेस रखे गए, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, ऑन द बेसिस कितने आप देखते हैं कितने मर्डर जो है वो बिना एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जाता, वो बात करता है। Then the definition of probability was changed to find the moral certainty in a situation of uncertainty। यदि मेरा कार से एक्सीडेंट होगा इस लेक्चर के बाद, तो मेरी मॉरलिटी होगी
कि मैंने कार यहाँ से स्टार्ट करते समय ब्रेक टेस्ट नहीं किया या स्टेयरिंग का बड़ा इशू हो या आप भी एक्टिवा से या घर से जब आप निकलते हो तो आप अपने व्हीकल को टेस्ट करो। इट इज योर मॉरलिटी। इफ यू सर्च दिस डेफिनेशन moral certainty, then you will find a lot of literature in search engine of regarding this study. This was the basic concept of statistics that was developed during the period of 17th century by Aristotle, Plato, and Hume through qualitative data analysis. And thereafter, in 17th century, Grant, Pascal, Berkeley, and Bernoulli, यदि आप बर्नूली को पढ़ेंगे, फर्स्ट उसकी जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स वाले आप लोग हैं, 4th पेज में उसने अपनी बुक में ही ये मॉरल अनसर्टेनिटी की बात की है। गॉस एक और स्टोरी आपको बता रही है। हमारा सन चारों सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कहाँ होता है, कोई बता सकता है? सबसे ज्यादा एप्लीकेशन एस्ट्रोनॉमर में, प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? केपलर। सन के चारों ओर वेनस है, अर्थ है, मून है, जुपिटर है, मार्स है, ये चारों ओर। उस इलेक्ट्रॉइड की क्या डिस्टेंस होगी इसको मेजर करने के लिए केपलर की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी। यदि साइंस स्टूडेंट्स रहे होंगे या हाई स्कूल में आपको पढ़ाई जाती है। और the basic assumption of Kepler theory was that there should be 220 observation, 220 observation. 1728 पर नॉर्वे में एक एस्ट्रॉइड दिखाई दिया। जैसे अभी हम लोगों के इंडिया में पिछले 15 दिन पहले हम लोगों ने पोलर स्टार या वेनस अगर आपको देखा था टैकेटाइट से, उसी तरीके से कुछ दिनों तक 5-7 दिन तक एक एस्ट्रॉइड दिखाई देता गया और वो गायब। एंड thereafter 7 years बाद same type of asteroid in the same direction of Earth was visible by some astronomer in Sweden, नॉर्वे के बाद स्वीडन। It means that astrologers या astronomer थे, कोई ना कोई तो asteroid ऐसा है जो सन के चारों ओर। They all went to Kepler, but Kepler denied. उन्होंने कहा हमारे बेसिक एजम्पशन फुलफिल नहीं होता है। 5-7 दिन तक एस्ट्रॉइड दिखाई पड़ा और फिर आपके 5 साल बाद एक दूसरी कंट्री में दिखाई दी। हाउ आई कैन देन दे ऑल वेंट एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर। आपको जानकर ताजुब होगा किस कंट्री में सबसे ज्यादा एस्ट्रोनॉमर है, मालूम है? पाकिस्तान। पूरे वर्ल्ड के एस्ट्रोनॉमर्स गॉस के पास थे और गॉस ने थ्योरी ऑफ एरर्स की इजाद कर, जो आप लोग रिग्रेशन मॉडल्स या तमाम तरीके की स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस में एरर्स की बात करते हो, रेसिडुअल्स की बात करते हो, उन्होंने ही डेवलप द थ्योरी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाद में लाप्लास ने उसको डेवलप किया। दिस इज द टाइमलाइन ऑफ दिस थिंग। फिर 18th सेंचुरी के लाप्लास आई 19th में क्वार्टेट आए। क्वार्टेट के बारे में बताएंगे आपको अभी। 20th सेंचुरी में पियर्सन कॉन्सेप्ट आया। देन विल्कॉक्सन, क्रिस्टल कॉलिन्स, स्पीयरमैन, कैंडॉल, टर्की, टेलेट, डुएल्स। अब आज आप लोग कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से या डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, these are the some picks of statisticians, Mary Simon, William Petty, James Slater, and Carl Pearson. ये just आपको दिखाने के लिए मैं there is a systematic management of this presentation. Whatever I did in my life, I followed this common base. एशियन इन्फ्लुएंस के बारे में ही मैंने ज़्यादा कुछ किया है। इस पर्सनालिटी को अधिकतर लोग जानते हैं, प्रोफेसर आर ए फिशर। He is supposed to be the father of the statistics, and I always condemn this man. पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी मैंने लेक्चर दिया, चाहे यूरोपियन कंट्रीज में दिया, इसको सब लोग रिकॉग्निशन देते हैं फादर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप लोग करते होंगे, अभी हम आएंगे जब एसपीएसएस सॉफ्टवेयर बात करेंगे, उस जगह पर आर ए फिशर को फादर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स की बात कही जाती है।
But in my opinion, he is Adolf Cutlet. He is a Belgian person, astronomer, mathematician, statistician. हमारी 1834 में इसने वो किताब लिखी जो सोशल साइंसेस के लोग बैठे होंगे, सारी सोशियोलॉजी की जितनी टेस्टिंग और हाइपोथेसिस 100 साल बाद आर्य फिशर ने दी, वो सारा कुछ क्वार्टलेट ने था 100 साल पहले। इन माई लाइब्रेरी देयर इज वन बुक ऑफ क्वार्टलेट। हमारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी पूरा यूनिवर्सिटी नंबर 2 यूनिवर्सिटी है पुराने लिटरेचर। तो आई ऑलवेज माई रिकग्निशन है दैट नो रिकग्निशन वाज गिवन टू दिस फेलो, इन माय ओपिनियन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस फिगर लेडी को आप लोग जानते हो, पहचान रहे हो? नहीं, तो बड़ी कॉमन फिगर रही है हर जगह। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वास्तव जो आप लोग पाई चार्ट बनाते हैं आजकल, नहीं सब डिवाइडेड सर्किल में डेटा को दिखाते हैं, या भी आपको बताया जाएगा आने वाले सेशंस में कि किस तरीके से डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। शी वाज द फर्स्ट लेडी हु डेवलप्ड दिस डायग्राम, दिस वन इज नोन एज रोज डायग्राम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बैटल एंड नॉन बैटल के बीच में अप्रैल 1854, मई 54, जून 54 एंड जुलाई, इस तरीके से उसमें डायग्रामेटिक, शी वाज द फर्स्ट लेडी टू प्रेजेंट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा इन दिस रोज डायग्राम। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे यू विल गेट नंबर ऑफ थिंग्स। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग सच थिंग्स, आप तो सोच रहे होंगे कि एस्पिरेशंस की वर्कशॉप कराना है ये प्रोफेसर पता नहीं क्या फिलॉसफी की बात करेंगे। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड स्टैटिस्टिक्स, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ स्टैटिस्टिशियन हु फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड द सेकंड वन इज द कंप्यूटर स्किल्स। आज के जमाने में आप लोगों के साथ इतने सॉफ्टवेयर आ गए, मैं कंप्यूटर को ब्लैक बॉक्स कहता हूं, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर आई एसपीएसएस के ऑल में मैं, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि देयर इज ए नो स्टैटिस्टिशियन इन द हॉल ऑफ एसपीएसएस सॉफ्टवेयर, और 26 से 27.5 लॉन्च कर दिया गया है। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर सोशल साइंटिस्ट का एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। इसमें जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बात हम करेंगे, देन वी विल ट्राई टू, हम आपके माइंडसेट में वो चीज डालना चाहते हैं जिससे कि आप इस सॉफ्टवेयर को या कोई भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते। एक यहाँ पर मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट आई हैव रिटन 2 इंग्लिश वर्ड्स हैविंग 3 letters each। आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, जिसको दिखाई पड़ जाए सिर्फ हाथ खड़ा कर देगा। आई थिंक 50-60 की गैलरी है, ओनली 2 person। There are 2 English words having 3 letters each। 1, 2, 3, 4। यही परसेंटेज मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड मिला है। इतनी बड़ी ऑडियंस में 4/60 आप कर लीजिए ये परसेंटेज। इट इज वेरी सिंपल टू सी इन नेक्स्ट स्लाइड। इट इज फ्लाई एंड टाइम। क्या था जब हमने आपसे ये पूछा कि देयर आर 2 इंग्लिश वर्ड्स हैविंग 3 letters ईच, तो आप कंसंट्रेट किस पे कर रहे थे? जो ब्लैक पोर्शन तक ये कुछ पी जैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ एच या सी और ये एच दिखाई दे रहा है, यहां पे आपका माइंडसेट जा रहा है। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। यही डेटा एनालिसिस करते समय हम लोगों को ध्यान देना है। हमारे पास तमाम
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या मेडिकल कॉलेज के लोग आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा टी टेस्ट लगा दीजिए या एनोवा लगा दीजिए, क्या सर ये एसपीएसएस में डेटा डाल दीजिए और ये रिजल्ट निकाल देगा। अरे आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनकी हाइट हम एक कॉलम में डाल दें एक्सेल की शीट में, और दूसरे बी कॉलम में मेट्रोल सिटी का टेम्परेचर डाल दें और कंप्यूटर को दबाएंगे, कोरिलेशन निकाल देगा within fraction of second. Now my question is that is there any significant relation between the heights of students sitting here with the temperature of Metrol City? Not at all. But this idiot box is doing such kind of things. Conceptually it is wrong. Therefore, when I said you search two words, हुआ क्या था? When I was showing this slide, you were concentrating on the black portion. जो गॉडी चीज हमें दिखाई देती है ना, अभी कोई सूट बूट पहन के टाई अंग्रेजी खूब बोले, प्रोफेसर या कोई मैडम खूब बढ़िया ब्यूटी पार्लर से आके झुमका उमका लगा के यहाँ लेक्चर दे, आपको बहुत अच्छी लगे। रियली मैं बता रहा हूँ कि बड़ा अच्छा हो, लेकिन हमें क्या देखना है, हम कंसंट्रेट ब्लैक की जगह हमें व्हाइट पे करना था। एंड एज सून एज मैंने क्या किया, इस दिया क्या कहते हैं वो डेटा को एनालाइज करते समय व्हाट एवर यू आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर, यू मस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन सच टाइप ऑफ परसेप्शन कि आप सही दे रहे हो रिजल्ट या नहीं दे रहे हो, या आपका रिजल्ट सही आ रहा है। जस्ट सी दिस क्वेश्चन, माय वाइफ आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आर यू हैप्पी with me? Married with me? My answer is yes. कान पकड़ के 100 बार मैं कह रहा हूँ। Whenever you are performing data analysis in any software, either SPSS, STAT, or R, or Python, or any type of, you must be particular about these type of perceptions. Same is there. This person is saying both parts are there, where this is saying the three parts. ऐसे ही आप अपने घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा, एक दो लाइन बराबर स्केच पेन से खींचिए, और लाइन को खींचने पर एक को कन्वर्जेंट ट्रीटमेंट दे दीजिए और एक को डाइवर्जेंट ट्रीटमेंट दे दीजिए। ये दो लाइन हमने खींची है, एक को हमने कन्वर्जेंट ट्रीटमेंट दे दिया और एक को डाइवर्जेंट ट्रीटमेंट दे दिया। देखिए ऊपर वाली लाइन जो है वो बड़ी नजर आने होता है, जबकि एकदम स्केल से हमने बराबर बांध दिया। इसी तरीके से ये दिखाई दे रहा है आपको, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने और स्क्वायर्स में बांट दिया 90। नाउ कैन यू टेल हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? बता, दिखाई दे रहा ना, एक स्क्वायर था, उसको हमने सब स्क्वायर्स में दो लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली खींची और दो वर्टिकली खींची। नाउ टेल मी हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर नाउ? 15 जिसने कहा वो हाथ खड़ा करे। जिसने 15 कहा है, आज शाम को सब लोगों को डिनर पे मैं दूंगा अपनी पॉकेट से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जाए। किसी ने 15 कहा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 14। जिसने 9 कहा उसका भी दोष नहीं है, जिसने 12 कहा और 15 तो क्या पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 14। कैसे होंगे 14? 9 तो हो गए, बड़ा हो गया 10। दिस स्क्वायर 1, 2, 3 and 4। This is the way whenever we are performing data analysis,
कि हमें परसेप्शन की बात नहीं करनी। एनीवे, हियर साइकोलॉजी वाले आप लोग कोई हैं? साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में वी टीच फाइलोमी, फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशन ऑफ जौहरी विंडो की गैरेट की किताब आप लोग स्टैटिस्टिक्स का उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। दिस सेज दैट वी नो नॉट, जौहरी विंडो सेज दैट ABCD हर व्यक्ति के पर्सनालिटी के अंदर होता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे ABCD को XYZ को। पॉइंट A सेज दैट हम खुद तो अपने बारे में जानते हैं, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर, जितना मैं जानता हूं उतना ही दूसरे भी मेरे बारे में जानते हैं। P, that point A is known as arena. P is the blind spot known to others. दूसरे को तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मालूम, not known to us. And C is a closed spot that is naked. P not known to others, but हम बहुत कुछ जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। And D is the point where ना तो मैं जानता हूं कि मैं क्या जानता हूं और दूसरे क्या है वो नहीं जानते। हमारी जो जर्नी होनी चाहिए इस 7 डेज वर्कशॉप पे एसकेएसएस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स अभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, वो फ्रॉम T to A है जर्नी दिस। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ABCD में विद इन ब्रैकेट में पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स एंड वेस्ट थॉट्स। आपको मालूम है मॉर्निंग जब हम लोगों की आंख खुलती है से लेकर रात को बेड टाइम तक ए नॉर्मल मैन कितने थॉट्स जनरेट कर लेता है इस माइंड सेट। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट ये बोलता है ए नॉर्मल मैन जनरेट्स 35,000 to 40,000 थॉट्स थ्रूआउट ए डे। 35 से 40,000 थॉट्स हमारे इस माइंडसेट पे जनरेट हो जाते हैं। और यदि वो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मरीज है, पेशेंट है, तो दैट फिगर बिकम डबल। Therefore, it is not practically possible to count all these thoughts which we have generated throughout the day at the bedtime. That's why the psychological statistician has categorized into 4 categories. The positive thoughts, जिसके बारे में हम हमारे बड़े या हमारे टीचर सबसे ज्यादा यही डायरेक्शन देते हैं कि हमेशा सकारात्मक चिंतन करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए। दूसरा कैटेगरी है नेगेटिव थॉट्स, कि हमारे घर में हमारी बेटी यदि लेट आ रही है, 7 बजे कोचिंग से आ जाना है, 9 बजे तक नहीं आई, तो इमीडिएटली नेगेटिव थॉट जनरेट हो, क्या बात हो गई, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया या कोई अनप्रोवर्ड इंसिडेंट। सी इज द क्लोज नेसेसरी थॉट, हम यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं तो हमारा प्रोफेशन है, इससे संबंधित या हमें आप लेक्चर लेना था तो भले ही ठीक है नौकरन में बैठे थे, लेकिन थोड़ा हम अपने केबिन में बैठ के अपने लेक्चर के बारे में सोच रहे थे जब ये नॉलेज शेयर कर। दैट इज ए कंपल, आप भी जो जॉब कर रहे हो उस जॉब से संबंधित सोचना आपकी मजबूरी है, दैट इज नेसेसरी। एंड थर्ड वन इज वेस्ट थॉट। नाउ टेल मी विच टाइप ऑफ these categories we have the maximum waste thought, व्यर्थ का विचार। दिन भर यदि आप ध्यान काउंट करें, काउंट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन सोचेंगे तो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में व्यर्थ का विचार होता है, अरे ऐसा ना हो जाएगा भगवान, पता नहीं क्या। सेकंड कैटेगरी क्या होती है, नेगेटिव थॉट्स। थर्ड कैटेगरी आपकी नेसेसरी तो जरूरी है कि आपको सोचना मजबूरी, आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप पीएचडी के बारे में सोचेंगे, हम टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग के बारे में सोचेंगे, जो भी जिसका प्रोफेशन है उसके बारे में। तो 35 से 40 हजार नॉर्मल मैन की कैटेगरी है, उससे मैक्सिमम पोर्शन जो है वो निकल गया निगेटिव थॉट्स। और यही कारण है हम अपने जूनियर को ये कहते हैं या अपने ऑफिस को जब बोलते हैं
कि नहीं ऐसा से ऐसा कर दिया जाए, तो इमीडिएट रिएक्शन जानते हैं क्या होता है? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारा डिपार्टमेंट का बड़ा बाबू ये बोलता है, आप तो अभी आए हैं यहाँ प्रोफेसर बनकर, हम तो 40 साल से डिपार्टमेंट चला रहे हैं, कभी ऐसी फाइल में नोटिंग हुई नहीं, ऐसा हो ही नहीं। इमीडिएट रिएक्शन जो है वो निगेटिव होता है। तो therefore my submission is that you will have to study the concept of ICA. Inclusion, you have to include the subject. The concept खाली SPSS सॉफ्टवेयर को चला लेने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक छोटी छोटी बारीकियां स्टैटिस्टिक्स की आप नहीं समझेंगे, जैसा अभी हमने कही एकदम, then you must have command over subject and you must have affection. So ICA is the very important. You will get it in detail in the Garrett book of biology. SWOT analysis भी आप लोग पढ़ते होंगे साइकोलॉजी में। We should know our strength, weakness, opportunity and threat. अक्सर मैं मजाक में एक लेक्चर देता या बताता रहता हूँ, My wife is my strength, but my neighbor's wife is my weakness. And when my neighbor is out of his house, then that is an opportunity. When he is inside, that is it. But we must know our strength, weakness, whenever we are handling any software. So these are some basic concepts, and now I am coming to the usage of it. जो आप लोगों को सीखना है, दो प्रकार से स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको करेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड समरी ऑफ डेटा कैसे विजुअलाइज करेंगे। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स सब लोग पढ़ाते हैं एज ए स्टैटिस्टिशियन टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द सैंपल। जो सैंपल से इंफॉर्मेशन हो, आप भी जो डेटा सर्वे कलेक्ट करते हो उससे आप इंफॉर्मेशन लेते हो, उस इंफॉर्मेशन से डेटा कलेक्ट करते हो। तो हियर दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मोस्टली मोस्ट ऑफ द सोशल साइंटिस्ट आर यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ विजुअल डिस्प्ले ऑफ द डेटा एज वेल एज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इंस्टेड ऑफ एस्टिमेशन। द बेसिक लैंग्वेज और बेसिक लैंग्वेज डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत अर्लियर, कलेक्शन, interpretation and analysis of it. But Americans are now changing the definition. Statistics is a science of getting informed decision. आप देखिए गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज अब बन रही है, वो डेटा कलेक्ट होता है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उस ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए जाते हैं और फिर पॉलिसीज फ्रेम होती है। And these are the strategies Americans are doing something here. And what are data which are nothing but facts, especially numerically facts collected together for reference or information. Then we apply some statistical tools and we get some type of information, knowledge. Therefore, statistics is a way to get information from data. And that you have to find it through the different softwares. Here you will be taught by the handling of this software. This is the taxonomy of statistics. At the beginning of the sessions, you will try to find out univariate, where we will study the shape, center, spread and relative positions. Then bivariate, then multivariate, then differential methods. You will be taught how to apply t-test, ANOVA and other non-parametric statistics. Statistics describe, first of all, center, variability and shape. These are the three important aspects when you will apply this SPSS software. First of all, उस डेटा को जो आपने उसमें डाला है, उसका शेप क्या है, उसका सेंटर क्या है, उसकी वेरिएबिलिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट। Most of the social scientists or fundamental scientists skip this. वो सीधे डेटा एसपीएसएस में डालते हैं और जो रिजल्ट वो बता देता है उसको कोट करके वो अपना इंटरप्रिटेशन। बट माय वे इज टोटली डिफरेंट। ग्राफिक्स से आपको
पूरा पता नहीं चल पाएगा, लेकिन कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि उसका पिक्चर बता सकते हैं कि क्या सीन बन रहा है। एंड फॉर दिस हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट ये आपको आगे आने वाले सेशन में बताया जाएगा किस तरीके से ये बनाया जाता है और उसकी बिहेवियर को हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एस्केशंस इज दैट आउटलायर। If you see that these are sheets and only one flag goat is there. अक्सर ऐसा होता है, जैसे I am observing the average height of this class is 5 feet 6 inch या 5 feet 4 inch, whatever I just not. मान लीजिए यहाँ पर एक स्टूडेंट आपकी तरह या आप पार्टिसिपेंट ऐसा भी है जिसकी हाइट अमिताभ बच्चन से 1 फीट ऊपर है, जस्ट इमेजिन, और उसने भी आपकी तरह यहाँ के रजिस्ट्रेशन भी देखे, वो रजिस्टर है, वो भी यहाँ पे बैठे, एंड बिकॉज ऑफ हिज हाइट ओनली एवरेज हाइट क्या होगी, अपर साइड में चली जाएगी। अक्सर मेरे पास जब डेटा एनालिसिस के लिए लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ ये आपका आउटलायर है, इसको वो कहते हैं इसको हटा दीजिए, इसकी वजह से रिजल्ट हमारा सर गलत आ रहा है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अक्सर ये करते हैं, जो उनकी हाइपोथेसिस है कि मेरी ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है, व्हाट एवर ट्रीटमेंट दे आर प्रोवाइडिंग, उसके वजह से देयर आर टू मेथड्स, वन इज मॉस्किंग मेथड एंड वन इज फैमिली। मॉस्किंग मेथड क्या है, वो जो अमिताभ बच्चन से बड़ा हो 1 फीट लड़का है वो झुक के बैठ हो, आई कैन नॉट ऑब्जर्व रिजल्ट, मॉस्क फैमिली। एंड सैंपलिंग मेथड क्या है, मान लीजिए आप में से 2 बच्चे आपस में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं या गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्टैंड अप गेट आउट। वो लड़का तो बाहर जा रहा है जिससे गॉसिप कर रहा था, उसको आंख मर दिया, अब तुम करते रहो। जब वो जाएगा उसको भी निकाल देगा। यूपी पुलिस का डेटा हम हर महीने एनालाइज करते हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में। यूपी पुलिस ने क्राइम सीन को 8 जोन में बांट रखा है, फिर 18 रेंजेस हैं, 18 रेंजेस के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हमारा काम उनको ये पुलिस ऑफिसर्स को बताना, या जो भी डीजीपी वगैरह, तो आज से 4-5 साल पहले आपको यदि यूपी के तो ओपीसी के डीजीपी हुआ था, वो हमारे लेक्चर में बैठा था, वो ये कह रहा था कि मेरा डेटा नॉर्मल है क्राइम का सीन पूरे उत्तर प्रदेश का। मैंने कहा पुलिस और पुलिस का डेटा नॉर्मल हो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, ग्राफिकली बॉक्स प्लॉट बनाया उसी समय। 1536 पुलिस स्टेशन है पूरे उत्तर प्रदेश में, हर एक का क्राइम का, हमको फिगर से मतलब है कि टॉर्चर द नंबर्स और डेटा, व्हाट एवर टाइप ऑफ क्राइम्स हो, क्रिमिनल रेप हो, मर्डर हो, लूट हो, डकैती हो, ईडियस क्राइम हो, आई डोंट फॉलो, वी नो द नंबर ऑफ FIRs। उसका जब बॉक्स प्लॉट किया तो पता चला 1-2 आउटलायर था, उसको निकल गया। तो उन्होंने कहा अच्छा इस डिस्ट्रिक्ट को देवी पाटन को हटा दीजिए। तो जब दोबारा मैंने उस 74 को बताया तो फिर पता चला रायबरेली निकल कर, रायबरेली को हटा दिया। जब रायबरेली को हटा के फिर 73 का बनाया तो फिर पता चला एक और कोई हरदोई आ गया। अरे उत्तर प्रदेश में 10 किलोमीटर आगे आप चलिएगा, बोली और भाषा बदल जाती है, तो आउटलायर नहीं होगा क्या? और यही डेटा एनालिसिस का मेन इशू है। जब भी ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करके हम डेटा उसमें डालते हैं, अभी जब हम स्पेशल बताएंगे तब आप देखिएगा यहाँ वो कैसे आउटलायर का ट्रीटमेंट एस्पेशंस करता है। हम लोग हेयर स्टाइलिंग कराने जाते हैं ना, बार्बर के यहाँ, या लेडीज आती है ब्यूटी पार्लर में हेयर का सेटिंग कराता है, ट्रिमिंग। एस्पेशंस सॉफ्टवेयर इज ओनली सॉफ्टवेयर जो 5% डेटा को ट्रेन कर सकता है। इससे ऊपर की यदि आपको ट्रेनिंग करानी है तो दैट इज नॉट। यदि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सुन रहे हैं, उनका डेटा जब तक 1000 नहीं होगा तो उनका रियल डेटा सेट और रिसर्च या वो 300 या 290 रह जाए। मार्केटिंग रिसर्च का डेटा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साइट का जितना भी मार्केटिंग का डेटा है, उसका यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो यू विल हैव टू कलेक्ट 3 टाइम्स जितना आपको सैंपल रिक्वायर्ड है, उसका 3 गुना आपको लेना पड़ेगा।
So this is the problem of outliers, that SPSS only treat with 5% of yield. This is the most important issue, goal of normality. We always teach that our data is normal, जो अभी मैं आपको बता रहा था. If your observations or data is 1 to -1, then only 68% data is normal. Or if 2 to -2, then 95% data is normal, and if it is 3 to -3, then 99.7%. आपने 9001 या 2015 अब तो ISO स्टैंडर्ड आ गया है, इस पर हम लोग 6 सिग्मा लिमिट पे काम कर रहे हैं. आप जब मार्केट कोई चीज परचेज करने जाते हो, प्रेशर कुकर है या फ्रिज है, तो आप कहते हो ना ISI ब्रांड का, ISO सर्टिफिकेशन वाला आपको प्रोडक्ट. इतनी बड़ा हिंदुस्तान है, इस इंडिया कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का डेटा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर का डेटा हो, पुलिस का डेटा हो, रेलवेज का डेटा हो, किसी प्रकार का डेटा जो नॉर्मल हो, आपको मालूम है, किसी स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर का डेटा हो, इकोनॉमिक्स का डेटा हो, सेंसेक्स का डेटा हो, इंडियन गवर्नमेंट का डेटा हो, किसी स्टेट का, 29 स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज हैं, किसी भी सेक्टर में किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा इस नॉर्मल बिहेवियर को पैटर्न करता है, सो दैट वी कैन अप्लाई द प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर एनालिसिस इन द सॉफ्टवेयर. देयर इज ओनली वन डेटा आई नो, एजुकेशन का हो या कोई भी डेटा जो आप जानते हो. आपने इतना रिसर्च अपने साइकोलॉजी पे, अपने सोशियोलॉजी पे, एंथ्रोपोलॉजी पे, अपने सब्जेक्ट पे किया, हमारे कंट्री देयर इज ओनली वन डेटा. मालूम है किसी को कौन सा डेटा एग्जैक्ट नॉर्मल है? मुंबई डब्बा वाला. मुंबई डब्बा वाला सुबेरे 10:45 पे 55 लोगों को टिफिन पहुंचाने का काम वहां से सुबेरे 5 बजे लोकल में सर में डिब्बे रखे वो चलते हैं, और पिछले 4 साल से इरेगुलर सर्विस हो रही है. 4 साल कह रहे हैं, पिछले 46 ईयर से दे आर सप्लाई, और दे डिड कमिट ओनली 3 टाइम्स मिस्टेक, और वो भी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की जो A to B या B to A का टिफिन B के पास पहुंच गया, B का टिफिन, और वो हमारे आपकी तरह कौन है, पढ़े लिखे नहीं है. They are following the normal distribution. I have analyzed 1 or 2 research paper I did from there. और यदि आपको विश्वास ना हो तो आप सर्च इंजन में जाके गूगल पे या किसी पर भी मुंबई डब्बा वाला उनके ऊपर मूवीज भी बनी. That is the only data which where we can apply the statistical tools and techniques. And most of the standardized normal distribution tests, for example, t-test, f-test, or regression and resist are required in this. And goodness of fit test, Saparo-Wills test, JMD के करते हैं, KS test आपको SPSS में बनाया जाएगा, एंडरसन डार्लिंग मिनी टैग पे हम लोग करते हैं to test the normality of the test. Now this is the some important definition: nominal, ordinal, interval and ratio. ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आप लोगों ने पढ़ा होगा. पढ़ा है? Nominal means we have to categorize the variable into male or female, black and white. Like this, there is no inherent measurement between the two. Then our variable is nominal. If variables are with inherent rank or order, file, coordinate, serial. For example, यदि मैं कहता हूँ smoking should be banned on cinema, you may agree with this statement, you may disagree, you may strongly agree, you may strongly disagree. My question is categorized into 4 categories. So here you will give the different values, 1, 2, 3, 4, for different points. So therefore, whenever such type of things are high school, intermediate, 10 plus 2 plus 3 plus 4, like this thing is say, then the variable is an ordinal.
Interval means that when you are having the ordinal variables, values of the variables are ordered as ordinal as well as additionally, and their differences are there. For example, the temperature, height, weight, which we can have, they are Fahrenheit scales are examples. Addition and subtraction, but not multiplication and division are meaningful of which are topics. The fourth one is ratio. जैसे केल्विन टेम्परेचर है, उसको हम लोग इंटरवल स्केल पे लेते हैं, लेकिन जो आपका केल्विन है वो रेशियो पे लेते हैं. क्यों लेते हैं? Because it explains absolute zero. जहां पर और -273 डिग्री केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री केल्विन. और फिजिक्स की यदि गोली आप पढ़ें तो उसका मतलब यह है कि दुनिया में ऐसा सब्सटेंस अभी तक नहीं हुआ है जो इस टेम्परेचर पर पहुंचे. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो. दैट्स व्हाई वी स्टडी इट in ratio category. So these are the some basic concepts before we have this. Therefore, the concept of nominal, ordinal, interval and ratio. SPSS सॉफ्टवेयर पे जब आप अपने वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे तो सिर्फ 3 कैटेगरी आती है. नंबर 1 नॉमिनल, सेकंड ऑर्डिनल. इन दोनों को सॉफ्टवेयर वालों ने एक किया. दैट इज स्केल. उसका नाम इंटरवल. ये आरंभ में रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ SPSS सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर. वन इज द प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर R+, Python, Impact, MATLAB. इसमें हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं. मोस्ट ऑफ यू आर यंग पीपल एंड यू आर फैमिलियर विद कंप्यूटर लैंग्वेजेस. अब तो हाई स्कूल से पढ़ाने जाने लगी है. बट द अदर कैटेगरीज आर स्टैटिस्टिका, NC, SS, स्टैटा. ये विंडो वर्जन है. SPSS इज आल्सो सिंटैक्स बेस्ड. यू कैन नॉट चेंज द सिंटैक्स ऑफ इट. बट इफ इन R+, R जो ये कहते हैं देयर इज ए सॉफ्टवेयर S+. R का मतलब है रिप्लाई टू S. And I was in the hall of R when this software was developed. And our team is in Hyderabad, and we are in coordinating with the Winbucks of UK. तो हम लोगों ने R रिप्लाई किया था S सॉफ्टवेयर. तो S+ सॉफ्टवेयर का जो रिप्लाई किया गया था, तो आज का आप लोग R पढ़ते हो, R का मतलब ही यही है. The history and development of SPSS software वर्कशॉप आप लोग अटेंड करने आए हो, वो ये है. ओरिजिनल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज रिटन फॉर IBM मेनफ्रेम SPSS 57 में हुआ था. और प्रोग्राम ओरिजिनली फॉर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर सोशल साइंसेज. और 68 में ये रिलीज किया गया. और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, before we discuss open the software in our system, I will just give the little bit in the terminology of SPSS. SPSS software, अभी आप हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन SPSS सॉफ्टवेयर खुद आपके डेटा की ये बात को कैसे समझेगा? Variables are things we measure, control or manipulate it. जो SPSS समझता है, जो आपसे बातचीत की करता है. They differ in many respects. For example, prediction, criterion or moderator may be the variables. Another concept, a variable आपके डेटा सेट पे क्या होना चाहिए? That should be a characteristic or an attribute of an object under investigation. जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उस पे आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर रहे हो, चाहे वो क्वालिटेटिव रूप से कर रहे हो या चाहे आप क्वांटिटेटिव रूप से कर रहे हो. इंटरवल स्केल पे ले रहे हो, रेशियो पे ले रहे हो, तो स्केल मतलब हो गया, या ऑर्डिनल है या
नॉमिनल कैटेगरी है, उसको एस्पेशल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड हैंड बाइसिकल हम खरीदना चाहते हैं, तो उसकी ब्रांड क्या है? एटलस है, हीरो है, हरकुलिस है, लाइक दिस। अब ब्रांड किस ब्रांड की हम ले रहे हैं, इसमें कोई नंबर तो नहीं है। टाइप, रोड किस टाइप कैटेगरी की है, रोड, माउंटेन, रेसर साइकिल है, एज कितनी पुरानी है, यहाँ नंबर है, 15 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, लाइक दिस, ऊपर में लिया है। कंडीशन फिर वो ऑर्डिनल हो गई, एक्सलेंट है, गुड है, पुअर है, प्राइस फिर नॉन वो आ गया, इंटरवल मतलब कितने रुपए में मांग रहा है, रेंज साइज क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है। तो इस तरीके से जो भी आप क्वेश्चनर डेवलप करते हैं उसके वेरिएबल्स को आप ये समझ के रखिए कि आप जो लैब में काम कर रहे हैं वो वेरिएबल आप एसपीएसएस में इंसर्ट कर पाएंगे या नहीं। इस तरीके से आपके अपने वेरिएबिलिटी कर सकते हैं। देन दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट वेरिएबल। मैनिफेस्ट वेरिएबल कैन बी ऑब्जर्व, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंडर, प्रोडक्टिविटी लेवल, टेन्योर एंड वेज, बट टैलेंट एंड वर्क एथिक ऑफ ए मैन कैन नॉट बी। Therefore, this variable is also a latent। एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में जब आप अपने वेरिएबल को एंट्री करेंगे उस समय आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके 75 जो आपने क्वेश्चन बना रखे हैं, 75, 70, 50 जो भी है, उसमें कौन से वेरिएबल मैनिफेस्ट वेरिएबल है जो सामने से ऑब्जर्व हो रहे हैं और कौन से लेटेंट वेरिएबल है। दीज आर द इम्पोर्टेंट। देन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यू नो दैट जो वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट है उसके ऊपर रखना पड़ेगा। जब आप एसपीएसएस की विंडो खोलेंगे एक बात और हम आपसे शेयर कर रहे हैं जब तक ये अक्सर आप जितने भी सोशल साइंटिस्ट है, सोशल रिसर्चर है, आप लोग अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पर, यहाँ पर एक नाजा मार्केट है लालबाग, 50 रुपए की एसपीएसएस की सीडी में है ना, उसको ले आते हैं आप और काम करते हैं उस सॉफ्टवेयर पे। नो डाउट वो पायरेटेड वर्जन। मेरे साथ 2003 में नैनीताल में एक इंसिडेंट और दैट आई वांटेड टू सी। मैं जिस डिपार्टमेंट में हेड था, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पे एक लड़की की थीसिस जमा हुई हमारे एक विंग के अंदर में, जैसे डॉक्टर आकाश संस्थान है सब के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जमा हुई थी एंड थीसिस वाज सेंट। उस समय हमारे डिपार्टमेंट में एसपीएसएस सॉफ्टवेयर, वी आर नॉट हैविंग द लाइसेंस वर्जन ऑफ एसपीएसएस। हुआ क्या, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर को थीसिस एग्जामिनर के पास से, और व्हाट एवर द राइवलरी हमारे यूनिवर्सिटी में हो रहा होगा, आई डोंट नो, एक वहाँ के मैं हेड था, मेरे पास वहाँ से एक चिट्ठी आई कि आर यू हैविंग ए लाइसेंस वर्जन ऑफ एसपीएसएस सॉफ्टवेयर सर इन योर डिपार्टमेंट। मेरे पास तो डिपार्टमेंट में था नहीं, तो आई इमीडिएटली रिस्पॉन्स दैट एग्जामिनर, नो आई एम नॉट हैविंग द एसपीएसएस। और पूरी थीसिस जो है वो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर पे करी थी, डेटा एनालिसिस जो भी। अल्टीमेटली दैट मैं तो वहाँ से 2006 में आ गया, वो हाई कोर्ट का केस चला उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट में, और अभी भी मैं जाता रहता हूँ। 2010 में मैं जब गया था, पता चला दैट गर्ल कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। दैट्स व्हाई बीइंग ए सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट, आई एम शेयरिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप पायरेटेड उससे जो नाजा मार्केट से या आप अपने लैपटॉप पे कर लेते हैं एनालिसिस,
उससे आप अपनी प्रैक्टिस भले ही कर लीजिए, बट इफ यू आर सबमिटिंग योर थीसिस और योर प्रोजेक्ट इन एनी फंडिंग, यू मस्ट गेट द आइदर लाइसेंस वर्जन ऑफ इन योर डिपार्टमेंट, नहीं तो आप सर्टिफाई करा लीजिए। मान लीजिए आप हमारे डिपार्टमेंट में जैसे लाइसेंस वर्जन ऑफ एसपीएसएस है, सारे बच्चे लोग करते हैं लाइसेंस वर्जन, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप कहीं पर किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले आते हैं, तो मैंने लिख दिया एज ए सीनियर पर्सन या कोई भी फैकल्टी का टीचर है कि हाँ मिस्टर एक्स या मिस वाई यहाँ पर आई थी, यहाँ पर एसपीएसएस के सॉफ्टवेयर जो हमारे लैबोरेटरीज में है उस पर इन्होंने काम किया था, वो लाइन में सर्टिफिकेट यदि वो घर ले ली होती तो उसको आज वो दे। दिस आई वांटेड टू शेयर बीइंग एन एल्डर पर्सन कि आप भले ही वो पायरेटेड सीडी से आप खरीद लीजिए और काम करते रहिए, लेकिन whenever you are submitting your research proposal to any funding agency or submitting your PhD, you must mention it कि क्या आपके पास नहीं है, नो डाउट, तो जिस इंस्टीट्यूट पे है आपके पास वहां से एक सर्टिफिकेट निकाल लीजिए कि हमने आप क्या किया। Whenever you will open this SPSS software, you will get this type of window. जब अभी आपको खोल के दिया जाएगा, इसके पहले एक विंडो बनकर आई थी, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। I wanted to narrate वो विंडो जो बनकर आती है उसको क्वेरी विंडो, अभी एट द बिगिनिंग आप उसको कैंसिल कर, जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पर दो प्रकार की, एक देखिए डेटा व्यू आ रहा है जिसमें वैर 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 करके देख रहे हैं आपको लाइन में आप वैर फॉर्म वेरिएबल, और दूसरा जो है वो आपका वेरिएबल व्यू। जब आप वेरिएबल व्यू देखते हैं नेम टाइप विड्थ डेसिमल लेवल के साथ होता क्या है, आप लोगों ने जो भी आपने एसपीएसएस का यूज किया, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया फील्ड से, क्वेश्चनर से डेटा अपना खुद कर लिया, क्वेश्चनर लगे आप, चूंकि डेटा व्यू बाय डिफॉल्ट खुलता है, दिस इज द वीकनेस ऑफ एसपीएसएस, आप सबसे पहले डेटा एंट्री करना चाहिए, और जहां काम आपने ये किया वहीं आपने सारा सत्यानाश किया। ये एक बड़ा साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं, जैसे ये पोडियम यहाँ पे रखा हुआ है, मैं यहाँ से बोल रहा हूं तब ज्यादा अच्छा लग रहा है, या ये पोडियम उठा के यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ से देयर आर टू पोजीशन। ये समझ लीजिए ड्रामा है, अक्सर रामलीला अगर आप लोग देखते होंगे कि एक पात्र इधर से एंटर करता है या एक पात्र उधर से आता है, किसकी पोजीशन स्ट्रॉन्गर हो, या आपने देखा होगा दो क्विज प्रोग्राम हो रहे हैं, एक इधर बच्चा खड़ा होता है ए टीम का, एक उधर खड़ा होता है बी टीम का, विच वन इज हैविंग स्ट्रॉन्गर पोजीशन। इस पोडियम को जैसे हम बोले तब ज्यादा अच्छे लगेंगे, या हमारी स्ट्रेंथ आपको पहुंचेगी, या ये पोडियम उठा के हम यहाँ रख दें और यहाँ से बोले, आपके डायरेक्शन से क्या होगा? हमेशा जब आप ड्रामा या मूवी देखते जाते हैं तो जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर पोजीशन होता है। क्यों? हर एक के पीछे कुछ राज है। विश्व की अधिकतर भाषाएं लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, कुछ भाषाओं को छोड़। हमेशा आप लोग चाहे इंग्लिश लिखे, जर्मन लिखे, फ्रेंच लिखे, लेफ्ट टू राइट लिखे। That's why when SPSS was developed, I got this story data view there. My default is data view. और हम लोग यही गलती करना शुरू कर देते हैं कि डेटा की I will not do this है, और मैं आपसे आपको कहना हूँ इसको आप नहीं करें। वापस आते हैं अपनी
ये देखिए हमारे पास एसपीएसएस का 20 वर्जन था, अभी जो हमने खोला वो लाइसेंस वर्जन था। इस तरीके की क्वेरी विंडो थी, वो जो हटा दी गई, इस क्वेरी विंडो को आपको हटा दें। एक एग्जाम्पल इसको जरा से आप पढ़ लीजिए। इस एग्जाम्पल की मदद से हम आपको एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के वेरिएबल यूनिट किस तरीके से तो डिटेल में हम इसको नहीं, हमने हर प्रकार के वेरिएबल ले लिए हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। रेफरेंस नंबर एक हमने सर्वे कंडक्ट किया स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग वाला। रेफरेंस नंबर मतलब मैंने इनसे पूछा तो 001 नंबर हो गया, इनसे पूछा 002, इस तरीके से एक सीरियल नंबर कितने लोगों का सर्वे किया। पहला क्वेश्चन हमारा है हाउ ओल्ड वेयर यू ऑन द लास्ट बर्थडे, मतलब उस कैंडिडेट जिससे हमने इंटरव्यू किया है उसकी एज पूछी। देन इंडिकेट योर सेक्स, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो हमने मेल या फीमेल। डू यू, फिर उससे हमने क्वेश्चन पूछा डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हो, तो या तो वो उत्तर देगा यस या देगा नो, यस या नो हो गया। फिर जब उसने कहा है यस स्मोक, तो मैंने पूछा डू यू स्मोक सिगरेट, तो वो यस कहेगा, तो ठीक है। तब हम बढ़ जाएंगे ऑन एन एवरेज हाउ मेनी सिगरेट्स पर डे यू कंज्यूम। यदि उसने कह दिया आई स्मोक, मेरा ये उत्तर दे दिया डू यू स्मोक एट ऑल, तो उसने यस कहा था। लेकिन जब मैंने उससे ये पूछा डू यू स्मोक सिगरेट, तो मैंने कहा नो, तब फिर हमारे दिमाग में हमारा क्वेश्चन इस तरीके से प्लेन होगा डू यू स्मोक पाइप, स्मोक करते हो, सिगरेट नहीं पीते हो, तो या तो पाइप पीते होगे, पाइप में भी नो कहते तो सिगार पीते हो या हुक्का पीते हो, लाइक दिस। ये एक एग्जांपल मैंने आपको। हैव यू ट्राइड टू गिव अप स्मोकिंग, अभी आपने छोड़ने की सलाह दी। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, टेल मी व्हाट यू थिंक ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टैक्स ऑन टोबैको इज टू हाई, आइदर यू स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, disagree, agree or strongly agree. Smoking is dangerous to your health. Strongly disagree, disagree, agree and strongly agree. Smoking should be banned on cinema. Should not be allowed in cinema. Strongly disagree, disagree. अब आप ये देखिए रेफरेंस नंबर कैसा हुआ, इंटरवल नंबर आ गया। हाउ ओल्ड एज की क्या हुई, नंबर आ गया। Indicate your sex, male or female, nominal. Do you smoke? Yes or no? Nominal. Do you smoke cigarette? Yes or no? Nominal. फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपका और हो गया इंटरवल, इसके अंतर आ कितनी सिगरेट है, कोई 5 बताएगा, कोई 15 बताएगा, कोई 10। फिर डू यू स्मोक पाइप, ये सब जो है नॉमिनल हो गया, यस नो 1 2 ऐसा ही आप लोग भी तो बनाते हो अपने क्वेश्चन, तो सब पे करने जाते हो। और फिर 10 भी 9 वाले के कितने हैं, ये ऑर्डिनल 1 2 3 4 लाइक डिस्कशन। इस क्वेश्चन पेपर पे हमने इस तरीके का 10 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करी है 10 लोगों का रिस्पोंडेंट। चला फर्स्ट रिस्पोंडेंट का देखिए, रेफरेंस नंबर 1 पहला जो कैंडिडेट था उसकी एज 27 थी, सेक्स वाज फीमेल। जब मैंने उससे पूछा डू यू स्मोक, उसने यस 1 कहा, मतलब डू यू स्मोक सिगरेट, तब उसने कहा यस। मैंने पूछा हाउ मेनी सिगरेट, उसने कहा 10। पाइप और सिगार वो नहीं पीते। गिव अप पे उसने यस रिस्पॉन्स किया। टैक्स सिनेमा वाले क्वेश्चन का उसका ठीक नहीं। ये डेटा सेट एक हमने आपको समझाने के लिए बना लिया। जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 10 रिस्पोंडेंट का हमने डेटा लिया और कैसे एसपीएसएस पे इसको डाला। जब एसपीएसएस सॉफ्टवेयर नहीं था तो आपको ताल्लुक होगा, इसी कमरे में हम लोग बैठ कर, तब डिपार्टमेंट सिंगल स्टोरी हुआ करता था 84 में, बड़ी बड़ी टेबल बनाते थे, चार्ट, तब कैलकुलेटर भी नहीं था। 80 जब 92 में मैं इंग्लैंड गया तब देन आई सॉ FX 82 साइंटिफिक, और तब यहाँ फेसिट मशीन एक डिपार्टमेंट होती थी, उसको चलाते थे और इसी बड़ी बड़ी हॉल में बैठ के टेबल बनाते तो लेबलिंग करते थे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा था रेफरेंस नंबर
तो इसका एक नोटेशन एप्लीकेशन रेफरेंस अंडरस्कोर एनओ कर देते हैं, रेफ अंडरस्कोर एनओ, जिससे कि एस्पेसेस समझ जाए। एज लास्ट बर्थडे, एज हो गया, सेक्स ऑफ द रेस्पोंडेंट, सेक्स ऑफ द शॉर्ट में लिख दिया, डू यू स्मोक क्वेश्चन था तो स्मोकर लिख दिया, डू यू स्मोक सिगरेट लिख दिया, हाउ मेनी सिगरेट्स के लिए नाम अंडरस्कोर सिग कर दिया, डू यू स्मोक पाइप का पाइप कर दिया, सिगार का सिगार कर दिया, टैक्स डेजर्स बीमा। इस तरीके से वेरिएबल को पूरा डिफाइन करने के बाद हम लोग लेबल करते हैं। अभी भी यही काम करेंगे जब हम एस्पेसेस सॉफ्टवेयर पे चलेंगे। हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अभी एस्पेसेस का सॉफ्टवेयर जब खोला था, दो व्यू थे, डेटा व्यू और वेरिएबल। हमारा पहला काम आज से क्या होगा, हम डेटा की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम पहले जो अपने वेरिएबल हैं उनके व्यू को वेरिएबल व्यू में जाके खोलें। वेरिएबल व्यू जब हमने खोला था, हमने वेरिएबल व्यू में क्लिक किया, डेटा व्यू चूंकि हमने बताया बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड खुलता है, हम उसको फॉरगेट कर जाएंगे। अभी वेरिएबल व्यू पे जाएंगे, हमारा पहला वेरिएबल का नाम हमें देना है, उसका टाइप क्या है, उसकी विड्थ क्या है, डेसिमल क्या है, लेवल क्या है, लाइक। पहला वेरिएबल का लेवल हमने क्या दिया था, रेफ अंडरस्कोर एनओ। जरा हम नीचे टाइप करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पर आर अंडरस्कोर एनओ हमने लिखा, इंटर कर। तो बाय डिफॉल्ट एस्पेसेस ने ये बता दिया कि ये जो वेरिएबल आपने टाइप किया है, तो सॉरी ये रेफरेंस नंबर नाम डाला है, ये कैसे टाइप का न्यूमेरिक है, एक उसकी विड्थ क्या है, डेसिमल क्या है, लेवल क्या है, वैल्यूज क्या है, ये सारा डिफाइन है। लेकिन हमें इसको करेक्ट करना है। इस करेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जरा पीपीटी पे जाओ। हमने आपको बताया नेम डिफाइन करने के लिए ये किसी को नहीं मालूम है, एस्पेसेस सॉफ्टवेयर सब यूज करते हैं, बड़े बड़े लोगों को यूज करते मैंने देखा। Whenever you are applying, these are the fundamental rules. Whenever you are giving the name to variable in SPSS software, number one thumb rule is that name must begin with a letter. एक अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होना चाहिए। The remaining characteristic can be letter any digit as begin or the symbol like this variable and names cannot end with a period. कोई period खाली नहीं छोड़े। दूसरा, ending variable name with an underscore should be avoided. ये नहीं कि ref underscore छोड़, कोई ना कोई उसका क्लोज होना चाहिए। The length of the character should not exceed 64 bytes. Blank spaces, hyphen या क्वेश्चन मार्क, कोलन स्टार कैन नॉट अक्सर हम लोग यूज कर लेते हैं। इसको हमेशा कभी नहीं यूज करेंगे जब आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद ऑल ALL, AND, PY, EQ, GT, LE, LT, LE, not और ये वर्ड्स ऐसे हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड्स है एसपीएसएस के लिए। OR हटा दिया गया, अभी उस 27.5 वर्जन आया है, उसमें मैं मीटिंग में था तो मैंने उसको हटाया, क्लिक कराया। जैसे एंड अक्सर हम लोग लिख देते हैं ना, मेल एंड फीमेल और AND लगा दिया। यदि आपने नाम डिफाइन करते समय वेरिएबल व्यू में AND लगा दिया तो एसपीएसएस गलत है, रीड कुछ और करता है, उसका सिंटेक्स आप चेंज आप नहीं कर पाओगे, तो सिंटेक्स कुछ और है। तो दीज आर द थंब रूल्स व्हेनेवर यू आर डिफाइनिंग दिस। अब जो अभी डेटा सीट अपने एसपीएसएस को दिखाएंगे, इनका सिस्टम ऐसा है। हमने क्या किया, रेफरेंस नंबर फर्स्ट वेरिएबल था हमारा लेवल,
फिर एज, सेक्स, स्मोकर, सिक्स, नन, पाइप, सिगार्स, गिव अप, इन वेरिएबल जो हमने लेबलिंग कर रखी थी उसको करते गए और एंटर कर। बाय डिफॉल्ट एस्पेसेस आपको इस तरीके का फिगर दिखा है। इसके बाद दूसरा जो कॉलम है, देखिए सेकेंड कॉलम को देखिए, टाइप। जैसे ही हमने इसको ये बाय डिफॉल्ट न्यूमरिक बता रहा था, अब हमारा वेरिएबल किस कैरेक्टरिस्टिक्स का है, वो न्यूमरिक है, कॉमा है, डॉट है, साइंटिफिक नोटेशन है, डेट है बैंक की, डॉलर करेंसी है, कस्टमाइज करेंसी है, स्ट्रिंग वेरिएबल। हमको यहाँ पर वेरिएबल का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर क्या चीज होगी हमारी, ऑटोमेटिकली वो होगी नंबर, तो न्यूमरिक हो गया। जहां पर हम फॉर एग्जाम्पल इसको हम स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल नॉमिनल वेरिएबल। देखिए जब आप इसको स्ट्रिंग कर रहे हैं तो ये वेरिएबल न्यूमरिक की जगह स्ट्रिंग हो जा रहा है और यहां पर कैरेक्टर्स सिर्फ रह जा रहे हैं। न्यूमरिक किया तो इसका अगला कॉलम वेट एंड डेसिमल, यहीं पर हम इसकी वेट डिफाइन कर सकते हैं। रेफरेंस, आप हमारा क्वेश्चन देखा था आपने, उसमें कितने रेफरेंस थे, 3। तो मैक्सिमम हम कितने का सबमिट करेंगे, 1000 से तो ज्यादा नहीं होगा, 9 होगा, 1000 होगा। तो हमारा वेट कितनी होगी, मैक्सिमम 4 से ज्यादा हम नहीं लेंगे, तो इसकी वेट हम कर देंगे 4। और डेसिमल क्या होगा, कोई बताएगा? रेफरेंस नंबर विल बी ऑटोमेटिकली 0। 2.5 नंबर किसी का नहीं हो सकता, तो इट विल बी 0 एंड सेट इट। देखिए 4 है, क्लियर हो गया। अब फिर आगे आते हैं, तो आपने नेम डिफाइन करना सीख लिया, टाइप बता दिया, वेट बता दिया, डेसिमल बता दिया। हम ये भी काम कर सकते हैं कि टाइप में ना जाके यहां से वेरिएबल हम देखिए घटा बढ़ा सकते हैं। वेट और डेसिमल को हम यहां पर भी जाके घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया? चाहे वो टाइप वाले में तो पॉपअप बॉक्स से हम वेट और डेसिमल को डिफाइन कर लें। अब विद वेट और डेसिमल कैसे डिफाइन होते हैं, इसका रूल क्या है, ऐसे यही विंडो बनकर आएंगी। ये जहां पर टाइप था वहीं पे हमने कर दिया था। इसके बाद आपके आते हैं वेरिएबल्स की विड्थ और डेसिमल आप कैसे डिसाइड करेंगे। या भी कोई डेटा की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चनर है उसमें विड्थ की कैसे डिफाइन करेंगे। विड्थ 1, डेसिमल 0 किया आपने फॉर वेरिएबल्स स्मोकर। स्मोकर का क्या क्वेश्चन था, डू यू स्मोक, या तो 1 होगा या 0। तो विड्थ कितनी होगी, 1। डेसिमल क्या होगा, 0। ऐसा तो नहीं है, कभी कभी दिखते, ऐसा तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना। कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो बी पर्टिकुलर अबाउट योर क्वेश्चन ऑन योर क्वेश्चनर और डेटा। देन 6
मतलब डू यू स्मोक सिगरेट? यस या नो? 1 बिट रहेगी, 0 रहेगा। डू यू स्मोक पाइप? आर नॉट द क्वेश्चन, आप याद करिए जो हमने लिखा था। सिगार, डू यू स्मोक? गिव अप टैक्स एंड डेंजर एंड सिलेबस। 1, 2, 3, 4 एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो हर बार एक ही बात तो कह रहे हैं, या तो 1 कहेंगे या 2 कहेंगे या 3 कहेंगे या 4 कहेंगे। फॉर दिस विथ 2 डेसिमल 0 फॉर वेरिएबल एज। एज क्या है? न्यूमेरिक वेरिएबल। और इसकी विड्थ हमने 2 रखी है। क्यों? इसकी विड्थ हमने 2 की। यस, यू आर राइट। ये क्या कह रहा है? एज ऑफ द रिस्पोंडेंट। यदि आप याद करें तो हमारा जो क्वेश्चनर है वो किसका? स्मोकिंग का। तो अधिक से अधिक हम कितने बड़ी महिला या पुरुष का क्वेश्चन करेंगे? 99 साल, 100 साल का, तो उसका क्वेश्चन करके डेटा। तो ऐसे ही आपको अपना क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फिल द विड्थ। क्लियर हो ना? वो मेल फीमेल वाला नहीं। विड्थ 3 फॉर नम सिगरेट्स। हाउ मेनी सिगरेट्स? तो क्या रखा हमने? कोई लोग जो है क्या कहते हैं 100 सिगरेट भी पी सकते हैं पर डे। हमारे ये टीचर इस डिपार्टमेंट में थे, 2 सिगरेट बुझी हुई लगी रहती थी और 1 सिगरेट पीते थे और पास पढ़ाते थे। मतलब दिन भर में 100 से ज्यादा वो सिगरेट पी लेते थे। तो इट में भी विड्थ 3। 4 विड्थ देंगे रेफरेंस नंबर पर, क्योंकि वहां पर हमने 999 ले रखा था। तो विड्थ 1 फॉर एक्सटिंक्ट वेरिएबल। मेल या फीमेल यदि हम लिख रहे हैं तो वो हमारा हमेशा एक्सटिंक्ट वेरिएबल विड्थ हमेशा होगा। तो किस तरीके से एस्पिसस के सॉफ्टवेयर पर जो वेरिएबल व्यू खोलकर जो आपके क्वेश्चंस हैं उस वेरिएबल को प्रॉपर्ली आप पहले यहाँ पर डिफाइन करें। अभी आधा हुआ है। इसके बाद वैल्यूज। अगला कॉलम यदि आप देखें तो वैल्यू और लेवल थोड़ा ये देखिए वेरिएबल व्यू है हमारा। हमने सीधे आपको दिखा दिया वेरिएबल इनका
बदले में जो कहते हैं, पहले रेफरेंस नंबर लिखा न्यूमरिक का और आगे यहाँ पर एज न्यूमरिक टू सेक्स हमारा स्ट्रिंग का, और ये वेरिएबल व्यू जो है इस तरीके की विंडो बन के आ रही थी। टाइप वाले पॉपअप से ही हम उसका तो ये कहते हैं वेट और डेसिमल प्लेस बना सकते, या अगले कॉलम में जाकर हम उसको वेट यहाँ पर जरा इसको देखिए, लेवल इसके बाद था। लेवल में से कोई मतलब नहीं है जो आपकी डेटा एनालिसिस, इस लेवल कॉलम को अभी ऐड किया गया है। जब हम एसपीएसएस के 2.0 यूज करते थे तब एसपीएसएस के ये वर्जन नहीं था, इस 16 वर्जन से चालू लेवल। ये सिर्फ फैसिलिटी एसपीएसएस की और किसी सॉफ्टवेयर। जो क्वेश्चनर आपका है उस क्वेश्चनर का पूरा ये जो एनो लिखा हुआ है, ये तो एचडीज यहाँ पर आपने एक उसमें लिखा है शॉर्ट नोटेशन में, इसका मतलब अभी हम लोग समझ रहे हैं रेफरेंस नंबर। लेकिन आज से 20 साल बाद ये फाइल यदि आप खोल के देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसका मतलब। इट इज ए शॉर्ट एब्रिविएशन और नोटेशन। तो हमने क्या किया, लेवल पे जाके इसका पूरा टाइप कर दिया रेफरेंस। सेकंड हमारा एज था, तो एज का मतलब उस समय क्या था, पहले आपको हम लोग बताएं जो हम लोग क्वेश्चनर सर्वे करते थे तो अपने जो क्वेश्चनर होता था उसको बांध के खूब संभाल के जैसे सोना रखा जाता है वैसे रखते थे। अब एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में क्या है, आपने क्वेश्चनर बनाया, सर्वे कंडक्ट किया, वेरिएबल व्यू में आके डिफाइन कर दिया, लेवल में आपने उस वेरिएबल का पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दिया और उसको हाइड कर दिया। वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाल। आज से 40 साल बाद ये फाइल यदि आप खोल कर देखेंगे तो आपको इन एप्लीकेशंस का जो नाम था पता नहीं था, भूल जाएंगे। आप इसको लेवल को ड्रैग कर दीजिए और वो पूरा का पूरा आपको याद होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रेफरेंस। तो इसको हम हाइड कर दे रहे हैं। अब आता है वैल्यूज। वैल्यूज में तीसरे में आप देखिए, हर वैल्यू पे यदि हम करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू लेवल हमारे पास क्वेश्चन क्या था, टू एज वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग था, तो इसकी वैल्यू हमको देनी पड़ेगी या तो एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू देखिए दे रखी है यहाँ पर एफ फॉर फीमेल। चूंकि वेरिएबल हमने यहाँ पर स्ट्रिंग का रखा है तो हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं एफ, और लेवल किसको दे रहे हैं, फीमेल ऐड कर दो। एम पे दिया वैल्यू मेल, ओके, एफ फॉर मेल। यदि यही वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग की जगह न्यूमरिक होता तो हम क्या देते वैल्यू, मेल देते, 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से वैल्यूज हमको डिफाइन करें। वैल्यूज करने के बाद फिर आपका कॉलम, कितने कॉलम में आप किसी को भी हम छोड़ रहे हैं, मिसिंग वाले कॉलम को बाद में आएंगे तो बेटा है। मिसिंग
को छोड़ते हुए अगला कॉलम पे आए कितने कॉलम का रिजल्ट हमें चाहिए, मतलब जो भी रिजल्ट्स की हमारी वैल्यूज आएंगी, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड, जो भी चीज आप निकालते हैं वो कितने डिजिट्स पे आपको 6 डिजिट का चाहिए, 4 डिजिट का चाहिए, 3 डिजिट का चाहिए। यू कैन हैव द कॉलम्स 132 सीक्वेंस कॉलम होते थे, या रेलवे में आप चाहिए जो प्रिंटर होता है उसका जो टिकट आता है वो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, 132 सीक्वेंस होता है, तो सेम टाइप ऑफ कॉलम्स। फिर अलाइनमेंट, जैसे वर्ड की डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं तो किसी पैराग्राफ को लेफ्ट में रखते हैं, किसी को राइट में एंड किसी को मिडिल में, वो चीज आप कहीं पर भी कर सकते हैं। यदि आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट राइट सेंटर, जो आपका डेटा व्यू में वेरिएबल जाएगा वो लेफ्ट में दिखाई देना चाहिए उसकी नंबर, राइट में या सेंटर में। उसके बाद फिर देखिए ये लास्ट है, हर एक वेरिएबल को हमने डिफाइन किया नॉमिनल, जैसा पहले बताया था हमने आर वाले में, नॉमिनल, रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल या स्केल। क्योंकि ये इंटरवल और रेशियो यहाँ पर क्या होगा, एक ही वेरिएबल है, इसके साथ में कोई तीसरा वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल व्यू का खाका बन गया। जब वेरिएबल व्यू का खाका हमारा बन गया, जितने भी वेरिएबल्स हमारे क्वेश्चन के हैं वो सारे हम दिखाएंगे। 50 हमने 10 का एग्जाम्पल लिया, 50, 60, 100 इतने होंगे। जब तक आपका ये काम पूरा ना हो तब आप क्या करेंगे, डेटा व्यू में जाएंगे और डेटा व्यू में ये देखिए जो चीजें हमने डाली है वो सारे फर्स्ट हो गया क्लियर। जो वेरिएबल का नाम डाला था हमने, पहला हमारा रेफरेंस नंबर था, फिर एज, देन सेक्स, स्कोप को स्कोप, ये हमारे पास 10 केसेस का एग्जाम्पल था, हमने लिया था। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। जितने भी वेरिएबल्स थे हमारे वो फर्स्ट ओवर बाय डिफॉल्ट था, अदरवाइज ये बैर कर दिया। पहला रेफरेंस का हमने फॉर्म उठाया, क्वेश्चनर जो था ना उसको उठाया, उसका रेफरेंस नंबर 1 पड़ा हुआ था, हमने 1 इंटर कर दिया। देन एज 27 उसकी दी हुई थी, तो 27 फॉर्म देखते चले गए। उसके बाद फिर सेक्स उसका फीमेल था, टू स्कोप पे उसका रिस्पॉन्स कम था, नम सिगरेट में 10 सिगरेट उसने नहीं दी, फिर बाइक सिगार में बदल था, गिव अप किया था, एंड इस तरीके से डेटा। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका है, आपने वेरिएबल व्यू अपनी माइंडसेट से अपने अक्सर क्या करते हैं आप लोग या रिसर्चर कि डेटा एंट्री ऑपरेटर रख लेते हैं, 2 पैसा डेटा एंट्री या 3 पैसा डेटा एंट्री पर करते हैं काम। या बीएससी का कोई बच्चा पकड़ लिया कि ये फॉर्म है, इसको खोलो, इस पे डालो। जैसे मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन में काम कर बहुत क्या रिजल्ट था, वहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर रखते हैं। तो आजकल जैसे 6 पैसा 1 एंट्री के लिए तो लड़की का नाम या लड़की का नाम, उसके मदर का नाम, तो वो खाली टाइप करो, कितनी एरर्स आती हैं। जब रिजल्ट निकलता है तो किसी का नंबर कुछ है, किसी के मदर की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो 4th 5th स्टैंडर्ड के पढ़े होते हैं, उनको जो एजेंसी वाला हायर कर लेता है। हम लोग भी जो जैसे यहाँ पर आईटी मार्केट है, वहाँ पर यही टाइपिस्ट बैठे रहते हैं, वो बच्चे सिर्फ 8वीं या 6ठी साल पे आते हैं, वो आप एंट्री करते। अब एंट्री करते समय आपको साथ में बैठना है। अधिकतर रिसर्चर करते क्या है कि सर ये डेटा एंट्री आप करवा दीजिएगा, उन्होंने क्वेश्चन 300 का क्वेश्चन रेस्पोंडेंट का लिया, वो थमा गए। हमने उसका चार्ज लगा दिया कि 6 पैसा पर एंट्री हम लेंगे, 100 क्वेश्चन है तो 600 रुपये, या इस तरीके से हमको आप करें। ये काम आप कभी करें, आप भले ही डेटा एंट्री ऑपरेटर से कराइए, लेकिन आप खुद बैठे। अब जब हमने इसको करना शुरू किया, इस क्वेश्चन को खुद जब कर रहे थे, मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
999 ये बता रहा है नम सिगरेट्स। जरा इसकी एज देखिए कितनी है। ये महिला है 38। डू यू थिंक कि एक 38 ईयर की लेडी जो दिन भर में 999 सिगरेट पीती है तो सही है? इसका मतलब क्या है? ये आउटलायर है, ठीक है। देयर जो हमने शुरू में आउटलायर की टेक्निक आपको बताई थी फिगर दिखा के, वो सीट के बीच में एक बोर्ड थी, इसको हमें रेक्टिफाई करना। जब इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे। वेरिएबल व्यू में जाके जहां पर दिया हुआ है तो यहां पर देखिए, हमने जब डेटा एंट्री हम कर रहे थे उस समय एक एंट्री, भाई जब हम सर्वे करने जाते हैं ना, लौट के आए तो वहां पर 999 की जगह 999 लिख दिया, या 9 की जगह 2 9 और बढ़ा दिए। बट जब हम एंट्री कर रहे हैं, यदि डेटा एंट्री ऑपरेटर तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो 999 ही भर देगा आपके एनालिसिस। और यहाँ पर एसपीएसएस में एक प्रोविजन दे रखा है कि आप उस ऑब्जर्वेशन को जो आपके हिसाब से आउटलायर है 999 को यहाँ पर, यदि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यदि आपका पूरा डेटा सही है, नो मिसिंग वैल्यू तो 999। डिस्क्रीट वैल्यूज का मैक्सिमम 3 नंबर को आप यहां पर एंटर कर सकते हैं डिस्क्रीट वैल्यू से। क्लियर हो गया? कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ, एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो रहा था, तो अग्रवाल है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का हेड है, 2008 या 10 में उन्होंने एक सर्वे किया था। होता क्या है कि जो सोशल सर्वे वर्क करते हैं वो सोशल NSW करने वाले छात्र हैं, वो सर्वे करने जाते तो क्वेश्चनर आपने फ्रेम कर दिया, शेड्यूल बना दिया, वो सर्वे करने चाहिए। तो यहाँ से लखीमपुर खीरी तक का सर्वे करना था उन्हें, और सर्वे जो भी उनका क्वेश्चनर था 50-60 क्वेश्चन थे उसका लिखे। जब उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट करने का टाइम आया या जो एनालिसिस करी, तो उन्होंने ये फाइंडिंग उनकी मिली कि जो सर्वेयर थे वो क्या करते थे, 3-4 लड़कियां थी, 2-3 लड़के मतलब जो उनकी जाते थे, सुबह यहाँ से जीप में जाते थे डिपार्टमेंट के, और सीतापुर से थोड़े आगे निकले, चाय समोसा खाया, वहीं पे भर दिया रामदीन, उसका नाम ये ऐसे पूरा भर, ऐसे बहुत काम होता है। वो डेटा ले आया, यहाँ किसको पता चलेगा? उन्होंने डेटा एंट्री करवा दी एग्जामिनेशन बच्चों से। जब यहाँ पर आए तो जो हाइपोथेसिस वो लेके चल रहे थे या जो उनकी इकोनॉमिक्स की रिसर्च थी, उसके अकॉर्डिंग उनका एकदम एब्सर्ड उत्तर आ गया। तो मैं नया आया था, वो मुझसे मिल गया, मैंने कहा आप अपना डेटा देखो। तो वो एक्सेल में डेटा था उनका, उस डेटा को हमने एसपीएसएस में अपने ट्रांसफर किया, और फिर कुछ फाइंडिंग्स मैंने देखी कि सारे उसमें जब डेटा क्लीनिंग करते हैं, अभी आपको बताया जाएगा डेटा वैलिडेट करते हैं, तब हमने ये देखा सीतापुर से 10 किलोमीटर आगे जाकर से 110 किलोमीटर जो लखीमपुर का डिस्टेंस है, वहां तक का जितना डेटा था वो पूरा जो है फेक। और 31 मार्च फाइनेंशियल क्लोजिंग थी, फरवरी का ये महीना था। अब आप ये सोचिए, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर उस प्रोजेक्ट को कर रहा है, और या तो दोबारा सर्वे कराए, अपने जेब से खर्च करे, यदि ओवर कॉस्टिंग होगी तो ICCR चिल्लाएगा कि तुमने इतना पैसा क्यों खर्च किया। और टोटल फिगर यदि आप दिखा रहे हो कि 5000 का सर्वे किया और वैलिड आपका इतना आ रहा है, तो उसका ऑडिट ऑफ देन आई सजेस्टेड हिम कि आप एक रेंज डालो, 3 से ज्यादा जब डिस्प्यूट हो रहे हैं तो लोग का मतलब यहाँ पर
110 किलोमीटर सीतापुर साउथ मान लीजिए, 110 किलोमीटर डाल दीजिए और उसके बाद फिर आगे जो है 110 और 220। तो 110 किलोमीटर से लेके 220 किलोमीटर तक का जितना रेंज है का वैल्यूज है वो सारा आपका एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। और जब आप रिपोर्ट सबमिट करोगे एससीसीआर में तो वो भी साइंटिस्ट समझ जाएगा कि हाँ वास्तव में इन्होंने दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एस्टिमेशन। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन, कोई डाउट? डेटा फेक है ये कैसे पता चला? डेटा फेक है आपको नहीं लगेगा? जैसे हमको यहाँ पे लग गया कि 38 साल की महिला 999 सिगरेट पी रही है, तो यार वास्तव में सही है कि गलत है? हाउ इट इज पॉसिबल यार? ऐसे ही आपके जो वेरिएबल हैं उनके, तो जब उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, अब फादर का नाम लिखा रामदीन, एज लिखी उसकी मेल 28, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 18, तो यहाँ पकड़ नहीं लोगे आप यदि आप रिसर्च कर रहे हैं? या और इसी तरीके एग्जाम्पल, वो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन वो था, अभी याद आ रहा है मुझे, उसमें नेम ऐसे ही उसका फरजा हुसैन करके ऐसा नाम था, एज 42, जो क्या कहते हैं वहीकिल का भी था, वो इकोनॉमिक्स में था ना, वहीकिल, टाइप ऑफ वहीकिल फॉर्चूनर, और अर्निंग जो क्या कहते हैं वो बीपीएल कार्ड पर। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका सर्वेयर क्या है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो इस तरीके, अब जैसे 999 यदि आ रहा है, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि 38 ईयर की एक लेडी दिन भर में 1 घंटा सिगरेट पीती है? कहीं गलत है। तो ऐसा ही उनके भी जो, जब आप डेटा, ये तभी आपको संभव हो पाएगा जब आप वेरिएबल व्यू के बाद डेटा एंट्री करें और डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब हमें नल हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूफ करनी होती है, बट वो रॉन्ग प्रूफ नहीं हो रही है इसके डेटा, तो उसके लिए पी वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, तो सर सिग्निफिकेंट किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे रिजेक्ट हो रही है। आप लोगों के साथ में सबसे बड़ा मजाक यही है नॉन स्टैटिस्टिशियन के साथ में, कि आप जो है अपने मन से चाहते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए या हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। अक्सर मेडिकल प्रैक्टिशनर हमारे पास आते हैं, उनकी अपनी एक हाइपोथेसिस होती है कि ये साहब इस ड्रग को फेल करना है। अब वो डेटा तो सही बोलता है, आपने झूठे नहीं बोलते, तो दैट इज द रीजन। उसमें फिर आपको जो अभी आप आगे बताया जाएगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आपका वो खत्म। तो दिस इज द वे कि किस तरीके से हम लोग डेटा एंट्री और वेरिएबल व्यू में जाकर, पहला काम आपका ये है कि व्हेन यू हैव कंडक्टेड द सर्वे और कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, क्वेश्चनर डेटा सेट आपके पास आ गया, उसकी लेबलिंग कर दी, वेरिएबल व्यू में जाके आपने नेम, टाइप, वेट, मिसेज जो भी है उसको सब आपने डिफाइन कर दिया। फिर आप डेटा व्यू में गए, डेटा एंट्री ऑपरेटर या खुद बैठकर देखिए, जब आपको लगा कि यहाँ पर ये आउटलायर जैसा लग रहा है, तो यू विल गो बैक टू द वेरिएबल व्यू और नोट मिसिंग वैल्यू या 3 डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू या एक पर्टिकुलर रेंज वेरिएबल की होगी, इतने से इतने तक ये वेरिएबल में जो है तो वो इनवैलिड आगे जब और फिर आप एनालाइज करके आउटलायर में हमने हमारा एक ऑब्जर्वेशन था, तो हमको 999 वैल्यू मिली जो हमारे डेटा फॉर्म में था। तो एक डिस्क्रीट वैल्यू हमारी ऐसी है जो आउटलायर, तो देयरफॉर आई हैव एंटर्ड 999 एज ए वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन। इसको हमने 999.01 मिसिंग ऑब्जर्वेशन। ऐसे जब दोबारा इस इनकम को दूसरा एंट्री करेंगे तो
तो उसमें कोई 10,000 आ गया तो वो भी तो नॉन हो गया, तो 9 के लिए आप दूसरा कर देंगे। ऐसे ही थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड को एंट्री कर देंगे। बट इंस्टेड ऑफ मोर देन 3 is there, then you will have to define a lady of the age of 38 cannot smoke 1000 cigarette in a day। मैक्सिमम कितनी सिगरेट आपको एज्यूम करती है? ये हम अपना बहुत ज्यादा 24 सिगरेट, बहुत स्मार्ट भी है कि 38 की एज की लड़की है, बहुत फिजिकली उसका स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऑब्जर्व करके आइए उसको। उसका सिगरेट 2 पैकेट होगा, 3 पैकेट होगा, 36। अब 75 सिगरेट थोड़ी को पी पाएगी, एक रेंज आप तो यू विल हैव टू इंटरवियर इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोज रेंज। इसके पहले की वैल्यूज यदि कहीं आपकी एंट्री पर है या इसके बाद की है, तो दैट विल बी ट्रीटेड इन द एनालिसिस एज ए मिसिंग ऑब्जर्वेशन। वैलिड ऑब्जर्वेशंस के आपके डेटा आपको ये कैसे इसका तो आपने डेटा चुराया भाई, आपको हम वो तो एंट्री करते समय आपको पता नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आप क्वालिटेटिव डेटा में आपका कलर जो है वो मरकरी से ब्राइट है, कलर का कॉम्बिनेशन बनता है। आपकी हाइट है 9 फीट 8 इंच है, तो आपको लग नहीं रहा कि आपका डेटा में ऊंचा है, यू विल इंटर कैसा होता है हाइट में रेबिलिया कोई भी ऑब्जेक्ट या आप ही का वेट है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग पढ़ाते हैं अधिकतर स्टैटिस्टिक्स में, जब यूनिट लेस होती है। जैसे हम अपने घर में दूध मिल्क लेते हैं अपने घरों में 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर लाइक दिस, और वेजिटेबल मार्केट से लेके आते हैं सब्जी, किसी दिन आधा किलो, किसी दिन 3 किलो, किसी दिन 2 किलो लाइक दिस। तो हमने महीने भर का मिल्क का डेटा रिकॉर्ड किया और वेजिटेबल का डेटा, और ये देखने की कोशिश करें कि किसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से आप ये क्या करोगे, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। मान लीजिए मिल्क का 3 आता है और वेजिटेबल का 7 आता है, तो आप ये कहोगे कि हमारे यहाँ वेरिएबिलिटी उसमें ज़्यादा है वेजिटेबल, या हमारे घर की लाइटिंग में वेरिएशन ज़्यादा है वेजिटेबल के रिस्पेक्ट। इज इट राइट? नो, क्योंकि वेजिटेबल को आप किसमें मेजर कर रहे हो? ग्राम किलोग्राम में, और मिल्क को किसमें कर रहे हो? लीटर में। तो जब 2 अलग अलग स्केल है तो यू कैन नॉट कंपेयर, तो आप उसको सेम स्केल पे लाओगे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन 100 से मल्टीप्लाई करके करते यूनिट टेस्ट करते। एक और तरीका है, तो ये तो किताबों में दिया हुआ है, एज ए स्टडीशियन हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। थाईलैंड के आई ऑब्जर्व या कलेक्टेड द वेट्स ऑफ 100 एलिफेंट, वहां पर हाथी बहुत रहते हैं, ठीक है। यहाँ तो वहां से लौट कर आए 500 हाथियों का वेट ऑब्जर्व कर दिया था, उनको कैलकुलेट कर दो रिकॉर्ड कर दिया था। यहाँ आए चूहों का वेट किया, हमारे दिमाग में चूहे होते, तो कोई 500 ग्राम का है, कोई 100 ग्राम का, ऐसे वेट लिया। क्लियर हुआ? अब इस डेटा सेट में भी अब तो आप ये कहोगे अब तो स्केल सेम है, वो भी तो ग्राम किलोग्राम में लिया, वो टनों में बात आ रही है, लेकिन यहाँ तो रियल एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर भी हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो दिस इज द वे आप किस तरीके से अपने डेटा को हैंडल करेंगे। और आपके हिसाब से तो यह है कि मेरा डेटा जैसा भी हो हमने इंटर कर देना है, एनालिसिस एक बटन दबा दे। हाइट्स का जितने 100 स्टूडेंट्स की हाइट का
यदि हम यहाँ पे डालते हैं ए कॉलम में हाइट्स और बी कॉलम में बेंगलोर सिटी का टेम्परेचर डालते हैं, वो रिलेशन को तुरंत दबाएं सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली देयर विल बी ए पॉजिटिव कोरिलेशन. बट इज इट a significant relationship between the heights of the student studying in Lucknow University campus with the temperature of Bengaluru city? Not at all. ये आपको सिग्निफिकेंस आपको एनी अदर क्वेश्चन? काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमने वेरिएबल्स को टाइप न्यूमेरिक किया है, बट स्ट्रिंग किया है. सेक्स को हमने स्ट्रिंग वेरिएबल किया है. यदि आप न्यूमेरिक करना चाहें तब आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज में जाकर 1 and 2 देना पड़ेगा. इफ यू आर डिफाइनिंग सेक्स वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल तो आपको वैल्यूज में जाकर हमने क्या किया, M फॉर मेल F फॉर फीमेल कर दिया. लेकिन यदि न्यूमेरिक करते तो 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल. Any questions? There are multiple questions. मतलब इसमें yes or no maximum आपने लास्ट में कौन से फूड्स हैं, तो कौन से फूड्स हैं, तो एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है. तो कैटेगराइज डिफाइन कर देंगे ना, 1 2 3 4 5 कैटेगोरिकल डेटा हुआ ना. बनाना एप्पल खाएं, कुछ हो सकता है ऑरेंज बनाना एप्पल, तीनों हो सकता है. हाँ. तो वैसे तो उसके लिए कैटेगरी आएगी ना आपकी, एक अलग से कैटेगरी और मिक्स कैटेगरी. अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वो चीज़ नहीं पॉसिबल है. ऐसे आपको जब एक्सरसाइज कराई जाएगी तो उसमें मिक्स कैटेगरी, एप्पल, बनाना, गोवा, हर एक की रैंकिंग देंगे. वो 1 2 3 4 इस तरीके से एक डेटा सेट आपका बनेगा. है इसको कर वो या नंबर आप बहुत आगे की बात. जब आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ाई जाएगी देन यू ट्राई टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टी वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस. क्योंकि वो चीज यदि अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे Thank you so much, sir, for such an intellectual lecture.